سب سے پہلے بات کریں گے دہشت گرد بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈنے لگے۔ مستونگ میں سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ کو شہید کر دیا۔ قاتلانہ حملے میں سیشن جج کا محافظ بھی شہید۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے جوڈیشل مجسٹریٹ سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ سیشن جج مستونگ کی گاڑی پر حملہ ولی خان بائی پاس کے قریب ہوا۔ جج صاحبان کوئٹہ سے سیشن کورٹ مستونگ جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا زخمی ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سے ٹیلیفونک رابطہ۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا، قانون کے محافظوں پر حملہ ریاست پر حملہ ہے، دہشت گردوں کو ہر قیمت پر انجام تک پہنچائیں گے۔ ترجمان شاہد رند نے کہا، وکلاء اور ججز کو نشانہ بنانا ایک گہری سازش کا حصہ ہے۔ سانحہ مستونگ کے خلاف بلوچستان بار کونسل نے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ دہشت گرد بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈنے لگے۔ مستونگ میں سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ کو شہید کر دیا گیا۔ قاتلانہ حملے میں سیشن جج کا محافظ بھی شہید۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے جوڈیشل مجسٹریٹس میں 2 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مستونگ کے قریب سیشن جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ سیشن جج عبدالحکیم اور ان کے گن مین کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ وزیراعظم نے مرحومین کی بلندی درجات کی دعا کی اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیراعظم نے زخمی جوڈیشل مجسٹریٹ طارق لاشاری اور دیگر کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ وزیراعظم نے کہا، بزدلانہ کارروائیوں سے دہشت گرد کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں مؤثر کارروائیاں تیز۔ دہشت گردوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ۔ مستونگ کے علاقے کھڑ کوچہ میں بروقت کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا۔ کارروائی کے دوران متعدد دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار دہشت گردوں میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔ متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیے گئے۔ علاقے میں دہشت گردوں کی مذموم کارروائیوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تیز کر دیے گئے۔ دہشت گردی کے خاتمے اور خطے میں امن و امان کے قیام تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی۔ ایک اور اہم معاملہ، پاکستان کی بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلیفونک رابطہ۔ سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا، کہا، میں فیلڈ مارشل اور پاکستانی عوام دوست ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دفتر خارجہ کا جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ واضح کر دیا، پاکستانی پرچم والے جہازوں یا بحری مفادات کے خلاف کارروائی کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔ امریکہ حوثیوں کے حملوں کی ذمہ داری تہران پر عائد کرے گا۔ اگر دوبارہ حملے ہوئے تو ایران کے ساتھ ان کو بھی سختی سے نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وارننگ۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ حوثی پہلے سمجھداری سے کام لے رہے تھے، اب دوبارہ حملے شروع کر دیے، 2 جہازوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر نے سعودی عرب سے سول جوہری معاہدہ ابراہم اکارڈ سے مشروط کر دیا۔ کہا، معاہدہ اسی صورت میں ہوگا جب سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ معاہدے میں شامل ہوگا۔ یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف بجلی پیدا کرنے اور دیگر غیر فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ جلد معاہدے کی منظوری دے دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کی ایران کی پلوں اور پاور سٹیشنز کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ مجرمانہ اقدام۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا رد عمل۔ کہا، عام شہریوں کو سزا دینا جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ واشنگٹن جنگ کو بڑھانا چاہتا ہے، اسے عالمی قوانین کی پرواہ نہیں۔ امریکی فوجیوں سے کہتے ہیں وہ غیر قانونی احکامات پر عمل نہ کریں۔ تہران غیر قانونی اقدامات کے خلاف مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ امریکہ کو ایران کے متعلق اپنی پالیسی اور رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا مشورہ۔ کہا، واشنگٹن کے پاس ایرانی عوام کے مفادات کا احترام کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کے تبادلے کے لیے ثالثوں کی کوئی کمی نہیں۔ اصل مسئلہ امریکہ کا غیر منطقی رویہ اور اس کے حد سے زیادہ مطالبات ہیں۔ ایران نے ہمیشہ امریکہ کے غیر منطقی اقدامات کا مضبوطی سے جواب دیا ہے۔ واشنگٹن کو ایران اور ایرانی عوام کا احترام کرنا چاہیے۔ لاہور میں مانسون کے دوسرے سپیل نے شہر کا نظام درہم برہم کر دیا۔ ریکارڈ بارش نے سڑکوں، عدالتوں، رہائشی علاقوں اور پوش آبادیوں کو بھی ڈبو دیا۔ شہری انتظامیہ سے شکوہ کرتے دکھائی دیے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں موسلادھار بارش نے شہر کو ڈبو دیا۔ ایئرپورٹ کے علاقے میں 263 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔
लिबर्टी, MM आलम रोड, हुसैन चौक, रेवन रोड, टाउनशिप, लाल पुल और केवलरी ग्राउंड समेत दर्जनों इलाके तालाब का मंजर पेश करते रहे। शमा कॉलोनी, मुगलपुरा और ताजपुरा में पानी घरों में दाखिल हो गया। नमाजियों के लिए मस्जिद तक पहुंचना भी मुश्किल बन गया, जबकि दुकानदार और रिहायशी इंतजामिया की अदम मौजूदगी पर शिकवे करते रहे। यहाँ पे कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हुई कि कोई आके कोई ये सीवरेज को क्लियर करे या पानी को क्लियर करे। बहुत परेशानी है, हमको परेशानी है। मेरी ये सामने फर्नीचर की दुकान है, बेसमेंट हमने इधर काम करना था, यकीन बिलीव करें सारा पानी नीचे चला जाता है। बंदा गिर भी सकता है। अब बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? बच्चे रुकते हैं, लेकिन ऐसे मसला होगा अक्सर भाई बंदा गिर जाएगा। अब मैं रास्ते में गिरता बचाऊं। दूसरी जानिब कैंट कचहरी भी ज़ेरे आब आ गई। वकला और साइलिन पानी से गुजर कर अदालत पहुंचने पर मजबूर रहे। इसने ट्रैफिक का पहिया भी जाम किया। गाजी अंडरपास बंद, हरबंसपुरा अंडरपास में 3 फुट पानी, जबकि लालक चौक में शहरियों ने कश्ती चला थी। गोल चक्कर तालाब बना रहा और जौहर टाउन की खयाबान फिरदौसी रोड पर शगाफ पड़ने से ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दी गई। जानलेवा भी साबित हुई। कसूर रोड पर मोटरसाइकिल फिसलने से 2 भाई जाँ बहक हो गए। बरकी रोड पर एक शहरी गहरे गड्ढे में गिरकर मौजजाना तौर पर बच गया। रहमानपुरा में नौजवान को शहरियों ने पानी से निकाल लिया, जबकि DHA फेज 4 में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। लाहौर में पानी तो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, मगर शहरियों का सवाल है कि बरसाती पानी के निकास के लिए बरवक्त इंतजामात क्यों नहीं किए जाते। लाहौर मानसून की बारिश ने वासा मुतल्लिका इदारों की दावों की हकीकत खोल दी। हरबंसपुरा अंडरपास में बारिश के पानी की निकासी न होने की वजह से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। महरा हाशमी इस वक्त हरबंसपुरा अंडरपास में मौजूद हैं, उनसे ताज़ा 3 सूरत हाल जानते हैं। महरा बताएगा, वहाँ पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रही हैं आप यहाँ पर? मानसून की बारिश के बाद हरबंसपुरा अंडरपास तालाब का मंजर पेश करने लगा है। अंडरपास में 2 से 3 फीट पानी जो है वो खड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई की टीम मौजूद नहीं है जो पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बना सके। ये पूरा अंडरपास बंद होने की वजह से और हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद होने की वजह से जो शहरी है, जो मोटरसाइकिल सवार है, जो गाड़ियों पर यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं, वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जो हमें पहले वासा की मशीनरी दिखाई गई कि हम इस मानसून का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन ज़मीनी जो कारकर्दगी है वो हमें अब दिखाई दे रही है कि कई घंटे गुजरने के बाद भी जो बारिश का पानी है उसको नहीं निकाला जा सका। जब भी बारिश आती है मानसून की, तो ना सिर्फ इलाके डूब जाते हैं, बल्कि जो लाहौर की सड़कें हैं वो भी इसी तरह नदी नालों का मंजर पेश कर रही होती है, जिस पर तमाम शहरी खासे हमें हर बात बरहम दिखाई देते हैं। जी ठीक है मेरा, आपने सूरत हाल में बताई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लाहौर के इलाके जौहर टाउन में खयाबान फिरदौसी पर 2 मकामात पर बारिश के बाद गड्ढे बन गए। शहरा के आधे हिस्से को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर इस वक्त मुतासर सड़क पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दानियाल बताएगा, इंतजामिया ने शगाफ को भरने के लिए क्या कोई इक़दाम अभी तक शुरू किए हैं? कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके जौहर टाउन की मारूफ शाहरा खयाबानी फिरदौसी पर, जो कि अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शगाफों वाली सड़क के नाम से मशहूर होने लग गई है, क्योंकि एक बार फिर लाहौर में आज सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बाद इस रोड के ऊपर 2 मुकामात पर गहरे शगाफ पड़ गए हैं। एक आप मेरे अकब में देख सकते होंगे कि शगाफ है जो कि कई फीट गहरा शगाफ जो है वो सड़क के एक साइड के ऊपर पड़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी हैं उनको भी आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसी से चंद कदम फासले के ऊपर भी एक और शगाफ जो है वो इस सड़क के ऊपर पड़ गया है। उसको भी भरने के लिए जो इंतजामी इदारे हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। चंद माह कबल ही इस रोड को कंप्लीट किया गया था। यहाँ पर अरबों रुपए की लागत से सीवरेज का जो पाइपलाइंस हैं, इसके अलावा जो सड़क की तामीर है उसका मंसूबा मुकम्मल किया गया था, मगर ज़्यादातर जो शगाफ पड़ते रहे थे वो सड़क के दूसरी जानिब जो है वो शगाफ पड़ते रहे थे। ये वो साइड है रोड की जो कि अब रिसेंटली तैयार की गई है। ये सड़क भी नहीं तैयार की गई थी। इसी साइड के ऊपर जो है वो ज़्यादा सीवरेज का काम किया गया था। दानियाल, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, भारत की जानिब से सलाल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक रहा है। इससे आगे हेड खानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हेड कादराबाद को भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। यहाँ पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक रहा और पानी का रेला चिन्योट ब्रिज की जानिब बढ़ रहा है, जहां इस वक्त 1,32,000 क्यूसिक के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की मिकदार 73,000 क्यूसिक
रिकॉर्ड की गई है। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 3,36,000 क्यूसिक रहा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2,000 क्यूसिक, हेड सलमान की पर 16,000 क्यूसिक रहा है। दरिया जहलुम की बात करते हैं। दरिया जहलुम मामूल के मुताबिक बह रहा है, जहां मंगला के मकाम पर 76,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। ये तो थी नाज़रीन दरियाओं की सूरत हाल। तो दरिया चनाब के माविन दरियाओं में भी तुग़यानी देखी जा रही है। हेड मराला के करीब दरिया मनावर तवी और जम्मू तवी में पानी की सतह बुलंद है। शदीद तुग़यानी से आस पास के इलाकों को नुकसान पहुंचा है। समा की टीम मुसलसल उस इलाके से अपडेट रखे हुए है। एंकर पर्सन फवाद ज़ैदी उस मकाम पर मौजूद हैं जहां गुज़िश्ता रात कश्ती को हादसा पेश आया था। उनसे मज़ीद जानते हैं। जी फवाद। सैलाबी कवरेज के लिए हम मौजूद थे हेड मराला पर, और हेड मराला से अगर हम आगे आएँ और दरिया के साथ साथ चलें तो हमने सोचा कि उन आबादियों के बारे में भी आपको बताएं जो बिल्कुल दरिया के साथ ही वाक़े हैं। मेरे रकम में आप देख रहे होंगे कि ये दरियाए मुनव्वर तवी है, इसके एक जानिब और दूसरी जानिब है दरियाए जम्मू तवी, और ये दोनों दरिया मिलते हैं दरियाए चनाब के साथ, और ये दरियाए चनाब, दरियाए जम्मू तवी और दरियाए मुनव्वर तवी हेड मराला के मकाम पर आके ये तीनों दरिया एक साथ मिलते हैं। तो इसी वजह से इन तीनों दरियाओं का पानी जो है उसका फ़्लो, उसका बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गुज़िश्ता रोज़ जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया था, तो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से यही बताया गया है कि यहाँ तक पानी गुज़िश्ता रोज़ आ चुका था। हमारे साथ उस्मान हैदर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये वो गांव है जहाँ पे गुज़िश्ता रात जो दरिया के इस पार, दरिया की इस पट्टी पे डेरे थे, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे, उनकी कश्ती को हादसा हुआ था गुज़िश्ता रात। ये वो सुर्खपुर का इलाका है। तो चंद रोज़ कबल जब भारत की जानिब से आबी जारियत की गई तो बहुत ज़्यादा इस मुनव्वर तवी में पानी का बहाव था और यहाँ तक पहुँच गया था। इतना पानी का बहाव था और फ़्लो इतना ज़्यादा था। तो आपने भी देखा होगा कि जब हम रास्ते में आ रहे थे कुरी शरीफ के इलाके में, तो इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात किए जा रहे थे कि अब जो अगर दोबारा पानी आता है तो फिर यहाँ से बंद तोड़ा जाएगा। तो इन इलाका मकीनों को बचाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से ये इंतज़ामात किए जा रहे थे। अभी भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए हम इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करेंगे कि इंतज़ामिया ख़ास तौर पर कुरी शरीफ का इलाका और सुर्खपुर का इलाका, इन देहातों को देखें, और इन देहातों से आगे जो देहात हैं, सुर्खपुर से कुरी शरीफ से जो आगे देहात हैं, वहाँ पर भी इंतज़ामिया अपने इंतज़ामात मुकम्मल करे। यहाँ पर कोई फ़्लड रिलीफ कैंप होना चाहिए, कोई यहाँ इंतज़ामात करें ताकि मुमकिन सैलाब के ख़तरे से इन लोगों को, यहाँ के इलाका मकीनों को बचाया जा सके। फवाद, आपका बहुत शुक्रिया। बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। लाहौर एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में 11 घंटे से बिजली गायब है। गाजियाबाद रोड से मुल्हिका इलाकों की बिजली भी सुबह 9 बजे से बंद है। मज़ीद जानते हैं वेल्डिंग एंड्रयू से। वेल्डिंग, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और जब खास करके लाहौर में बारिश हो जाती है तो तब जो लोड शेडिंग का दौरानिया वो भी और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और ये भी देखा गया कि आज भी लाहौर के अंदर 3 से 8 घंटे तक जब वो बिजली गायब रही। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी तक लाइट नहीं आई। जैसे कि बात करें एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में, तो वहाँ से 11 घंटे से बिजली गायब है, जबकि गाजियाबाद में भी सुबह 9 बजे से लाइट गई हुई है और अभी तक जो है वो वहाँ पर लाइट नहीं आई। और इसी के साथ साथ मजीद जो इलाके में आपको बताऊं वो ताजपुरा, बरकी रोड, वापटा टाउन, जौहर टाउन, इसके साथ साथ कैलवरी ग्राउंड में भी देखा गया कि जो बिजली की शदीद बंदिश का सामना रहा। शहरियों ने यही एक दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द हमारे इलाकों में बिजली बहाल की जाए ताकि हमारी जो जिंदगी है दोबारा से मामूल पर आ सके।